الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. آج ہمارا سبق نمبر 2 شروع ہوگا جس کے اندر ہم وضو کا سنت طریقہ جو ہے وہ پریکٹیکل کے طور پر سکھائیں گے. اس سے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 1 میں ہم نے وضو کے فرائض کو سیکھا، پھر اس کی تفصیل کے ساتھ اس کا جو پریکٹیکل طریقہ تھا وہ بھی سکھایا، اور اب ہم وضو کا جو سنت طریقہ ہے اس کو ہم سکھائیں گے. میری طرف سب نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، دائیں بائیں کسی کا دھیان نہ ہو. جس وقت بھی میرا دل چاہے گا کسی کو بھی میں کھڑا کر کے جو بات کہہ رہا ہوں میں سن سکتا ہوں. وضو کا سنت طریقہ. وضو کے فرائض تو آپ نے سماعت فرما لیے کہ وضو کے 4 فرائض تھے. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سال کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. وضو کا سنت طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقہ سے وضو کو کیا اس طریقہ سے ہم نے وضو کرنا ہے. جب ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم نے دل میں ارادہ کرنا ہے. وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی جو سنت ہے وہ دل میں ارادہ کرنا ہے. دل میں ارادہ کیا کرنا ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں. نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہوں. اگر قرآن مجید کو پڑھنا ہے، چھونا ہے تو اس کے لیے میں وضو کرنے لگا ہوں. یعنی دل میں وضو کا ارادہ کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں اس کو سنت بلکہ اس کو نیت کہتے ہیں. دل میں جو ہم نے ارادہ کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیت کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے وضو کرنے کا دل میں ارادہ کرنا ہے، نیت اسے بولا جاتا ہے. جب ہم نے ارادہ کر لیا پھر اس کے بعد جب ہم وضو خانے پہ گئے ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جب وضو کرنے لگنا ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے جیسے ہی ہم اپنے ہاتھوں کو دھونے لگے تو اس وقت ہم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے بسم اللہ پڑھ لی پھر جس جگہ ہم وضو کر رہے ہیں وہ پانی کو کھولیں گے، وہ نلکا جو ہے ٹوٹی جو ہے اس کو کھولیں گے. جب ہم اس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے. ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ جو ہڈی آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، یہ والی جو ہڈی ہے اس سے اوپر تک یہاں تک ہم نے جب وضو کرنا ہے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اچھی طرح دھونا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک ہم نے اچھی طرح دھونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا پھر اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے اپنے چلو میں پانی لینا ہے. یہ جو انسان اس طرح ہاتھ بناتا ہے، یہ ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا کہ جب ہم نے
अपने इस तरह हाथ को बनाना है। किस तरह हाथ को बनाना है, ऊपर करके दिखाओ। यानी कि दाएं हाथ में इस तरह दोनों हाथों में पानी नहीं लेना, ये दोनों हाथों में पानी नहीं लेना, बल्कि दायां हाथ जो है उसमें पानी लेना है। क्या करना है, दायां हाथ में पानी लेना है और पानी को जब लेना है इस तरह हाथ को चुल्लू बना लेना। क्या करना है, हाथ को चुल्लू बना लेना। इस तरह हाथ को चुल्लू बनाकर फिर उसके अंदर हमने पानी डालकर उसको मुंह में लेके जाना है। मुंह में ले जाकर उस पानी को मुंह में हरकत देनी है। उस पानी को मुंह में हमने हरकत देने के बाद हमने क्या करना है, उस पानी को बाहर फेंक देना है। हरकत देने के बाद हमने क्या करना है, मतलब ये है कि जब हमने वुजू करना है उस वक्त पहले अपने हाथों का, दोनों हाथों को धोने के बाद इस तरह हमने चुल्लू बनाना है। इसके अंदर पानी डालकर उल्टे हाथ में नहीं बल्कि सीधे हाथ में पानी डालकर फिर उसके बाद हमने इस तरह उस पानी को अपने मुंह के करीब ले जाकर मुंह में डालना है और उसको पानी को मुंह में हरकत देनी है ताकि हमने जो भी चीज खाई है उसका जायका खत्म हो जाए। और फिर बेहतर ये है कि जब हमने इस तरह मुंह में यानी कि पानी को डाला, कुली करने के बाद हमारे लिए वुजू की सुन्नत में से एक सुन्नत ये है कि इंसान मिसवाक करे। इंसान क्या करे, मिसवाक। ये देखिए ना, मेरे पास मिसवाक है ना, मिसवाक करनी है। हमने पहले क्या करना है, कुली करने के बाद हमने अपनी मिसवाक को पानी से पहले धोना है। धोने के बाद फिर इस तरह इस मिसवाक को हमने मुंह में डालना है। ठीक है, मुंह में डालना। मिसवाक पकड़ने का तरीका क्या है, इस तरह नहीं पकड़ना, इस तरह नहीं पकड़ना, बल्कि मिसवाक पकड़ने का तरीका ये है कि ये जो 3 उंगलियां हैं ये ऐसे हो, अंगूठा और ये जो चीची जिसे हम छोटी उंगल कहते हैं ये दोनों इस तरह हो। यानी कि छोटी उंगली और अंगूठा एक तरफ हो, ये 3 उंगलियां जो है वो एक तरफ हो। इस तरह हमने इस मिसवाक को पकड़कर मुंह में हमने मिसवाक यानी कि इसको धोकर अपने दांतों को साफ करना है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और जब हमने मिसवाक कर दी है ना, तो मिसवाक करते हुए भी मुंह की दाईं तरफ से हमने इसको शुरू करना। एक मर्तबा कर लेनी है, फिर हमने कुली करनी है, मिसवाक को धोना है। दूसरी मर्तबा मिसवाक को धोकर अच्छी तरह दांतों को साफ करें, फिर इसको धो लें, फिर तीसरी मर्तबा साफ करें। क्योंकि बसा औकात इंसान ने कोई मीठी चीज खाई होती है, कोई नमकीन चीज खाई होती है, तो जब हम कुली करने के बाद हम मिसवाक कर लेंगे ना, तो ये दांतों के अंदर से हर चीज जो भी खाई हुई है उसका जायका जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जब फिर हम नमाज पढ़ेंगे या कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं होगी, बल्कि सही कुरान की तरफ और नमाज की तरफ काबिल तवज्जो रहेगी। इस तरह बल्कि हदीस मुबारक का भी मफहूम है कि जो इंसान मिसवाक करके वो नमाज पढ़ता है और जो आदमी मिसवाक के बगैर नमाज पढ़ता है, इन दोनों के सवाब में कमी है। बल्कि यहाँ तक कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाती है, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाती है, वो नमाज दूसरी नमाज की बनिस्बत उस नमाज का 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। यानी कि इस तरह हमने क्या करना है, मिसवाक करनी है। सबसे पहले हमने दिल में इरादा किया था, फिर उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर क्या किया था, दोनों हाथों को गिरदों तक धोया था, और फिर चौथे नंबर पर हमने मिसवाक की थी। अगर फर्ज करें किसी के पास मिसवाक नहीं है, अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो फिर वो क्या करे, ये दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली, ये दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली, इस उंगली को कौन सी उंगली कहते हैं, ये दाएं हाथ की जो शहादत वाली उंगली है ना, दाएं हाथ की कौन सी उंगली है, शहादत वाली जो उंगली है, इसको हमने अपने मुंह में डालकर मिसवाक की जगह इस्तेमाल करना है। इस तरह हमने इसको अपने मुंह में डालकर अच्छी तरह यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारी अच्छी तरह उंगली मारनी है, ताकि दांतों के अंदर जो भी चीज लगी हो वो अच्छी तरह साफ हो जाए। फिर नमाज के अंदर भी सही तवज्जो हो, और जब हम कुरान मजीद भी पढ़े उस वक्त भी हमारी सही तरह तवज्जो रहे। अब ये
था मिसवाक करने तक हम पहुंचे हैं। जब हमने अपने दोनों हाथों को भी धो लिया, कुली भी कर ली, फिर उसके बाद हमने मिसवाक भी कर ली। अब मिसवाक करने के बाद हमने करना क्या है? मिसवाक करने के बाद हमने अपने नाक में पानी चढ़ाना है। हमने क्या करना है? अपने नाक में पानी डालना है। अपने नाक में क्या करना है? पानी डालना है। और इस तरीके को अच्छी तरह गौर से समझें। हसीन मेरी तरफ तवज्जो रखो। यानी कि इस तरीके को अच्छी तरह गौर से समझ लें कि जब हमने अपने नाक में पानी चढ़ाना है तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि जब हमने नाक में पानी चढ़ाना है, इस तरह बाएं हाथ का चुल्लू बनाकर नाक में पानी नहीं डालना। बाएं हाथ में पानी देकर नाक में नहीं डालना, बल्कि सही तरीका ये है कि इस तरह दाएं हाथ को चुल्लू बनाया जाए। दाएं हाथ को किस तरह चुल्लू बनाया जाए, इसके अंदर पानी लिया जाए। जब ये पानी से भर जाए, इसको इस तरह नाक के करीब करके आहिस्ता से, ज्यादा जोर से नहीं, आहिस्ता से हमने सांस अंदर की तरफ खींचना है। जब आहिस्ता से हम सांस अंदर की तरफ खींचेंगे ना, तो फिर होगा क्या? ये पानी जो है ये नाक की सख्त हड्डी तक खुद ब खुद ही चला जाएगा। इस तरह हमने दाएं हाथ के चुल्लू में पानी देकर नाक के करीब ले जाकर इसको आहिस्ता से खींचना है। आहिस्ता से क्या करना है? जब हम इसको खींचेंगे, पानी कौन से हाथ में लेना है? दाएं हाथ में हमने पानी ले लिया। और फिर बसा औकात होता है इंसान जब सांस लेता है ना, सांस लेने की वजह हर वक्त हवा के अंदर गर्दो-गुबार उड़ती रहती है और इंसान के नाक के अंदर नमी भी होती है और बाल भी होते हैं। तो जब नमी इंसान इस तरह सांस लेता है ना, अपनी तरफ खींचता है, तो गर्दो-गुबार भी आ जाती है और वो गर्दो-गुबार नाक में जाती है, तो फिर नाक के अंदर नमी होने की वजह से वो मट्टी सी जम जाती है, जिसे हम रीढ़ चूहे वगैरह कहते हैं। तो हमने उसको अपने दाएं हाथ से साफ नहीं करना, बल्कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से, बाएं हाथ की छोटी उंगली से हमने अपने नाक को इस तरह साफ करना है। हमने अपने नाक को बाएं हाथ की छोटी उंगली से साफ करना है, अच्छी तरह साफ कर देना है, ताकि जब हम नमाज पढ़ें, जब हम कुरान मजीद की तिलावत करें, तो उस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो दाएं बाएं बिल्कुल ना हो। यानी ये नाक के अंदर दाएं हाथ से पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से हमने नाक को क्या करना है? साफ करना है। तो इस तरीके का भी नाक में पानी चढ़ाने का, फिर नाक को साफ किस तरह करना है, इस तरीके की समझ आ गई, अच्छी तरह आ गई होगी। तो फिर उसके बाद हमने अपने क्या करना है? चेहरे को धोना है। फिर उसके बाद वुजू की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि चेहरे को धोना है। इसको बताने से पहले कोई एक बच्चा खड़ा होकर के नाक में पानी किस तरह चढ़ाना है, अपने नाक को किस तरह साफ करना है, एक बच्चा खड़ा हो जाए और वो तरीका बताए। आप बताएं फरमान, बोले ना बोले। नाक में पानी लेना है और नाक के पास करके थोड़ा सा सांस को अंदर की तरफ खींचना है और बाएं हाथ से छोटी उंगली से अपने नाक को साफ करना अच्छी तरह से, पहले दाईं तरफ से फिर बाईं तरफ से। चलो ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है आपका। यानी कि ये तरीकाकार है, दाएं हाथ से हमने क्या करना है? नाक में पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से हमने अपने नाक को साफ करना है। फिर उसके बाद वुजू की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि हमने अपने दोनों हाथों में पानी लेना है। हमने अपने दोनों हाथों में पानी लेना है। दोनों हाथों को इस तरह साथ मिलाना है। दोनों हाथों को इस तरह साथ मिलाना है, उंगलियों को भी साथ मिला के रखना है। जब दोनों हाथ, दोनों उंगलियां आपस में इस तरह साथ मिल जाएंगी, तो इनको भी एक चुल्लू नुमा बना देना। क्या करना है? इसको एक चुल्लू नुमा बना देना है। इस तरह जब हमने अपने हाथों को करना है, इसके अंदर अपने हाथों को पानी से भर लेना है। अपने हाथों को क्या करना है? अपने हाथों को पानी से भर लेना है। और ऐसे अपने हाथों को पानी से भर लेने के बाद हमने अपने हाथों को इस तरह चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर ऐसे मारना। ये नहीं कि इधर से भी, कि जिस तरह अक्सर छोटे बच्चों की आदत होती है
کہ وہ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، ابھی منہ کے قریب نہیں جاتا، ادھر زور سے ہی ایسے پھینک دیتے ہیں۔ وہ خود اپنا منہ تو گیلا کرتے ہیں، لیکن جو دائیں بائیں دوسرے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے نہیں کرنا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں میں پانی لینا ہے اور پانی لے کر جب اپنے منہ کے اس طرح قریب کرنا ہے تو اس طرح منہ کے قریب لے جا کے اس طرح اپنے پورے چہرے پر پانی مارنا ہے، اپنے پورے چہرے پر اپنے پورے چہرے پر کیا کرنا ہے؟ پانی مارنا ہے۔ چہرے کی حد کا تو آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا گیا تھا نا۔ حسن کھڑے ہو کے بتاؤ چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بات شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ جو ہے یہ چہرے کی حد ہے جو حسن بھائی نے آپ کو بتائی ہے، یہ چہرے کی کیا ہے؟ یہ چہرے کی حد ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ہاتھ میں پانی دے کر اپنے ادھر پانی مار لینا، ادھر گیلا ہاتھ پھیر لینا ہے، اس طرح وضو نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہم ہاتھ میں پانی دے کر اپنے چہرے کو اس طرح دھوتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہاتھ میں پانی لے کر اپنی پیشانی پر بھی اس پانی کو مارنا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اپنے پورے چہرے کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ ہاں، اگر جس آدمی کی داڑھی ہو، آپ تو سب چھوٹے بچے ہو نا، جس آدمی کی داڑھی ہو، داڑھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک داڑھی گھنی ہوتی ہے یعنی سنگھی جسے ہم بولتے، بال بالکل ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جو گھنی نہیں ہوتی، اس کے بال ساتھ ساتھ ملے نہیں ہوتے۔ ہم وہ داڑھی جو بہت زیادہ گھنی ہو، جو بہت زیادہ گھنی ہو، تو اس کے لیے جو جلد ہے نا داڑھی کے نیچے والی، جہاں داڑھی کی جڑیں ہیں، ادھر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہوتا، ادھر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ آدمی کہ جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اس کے لیے اپنی جلد تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم نے اپنے چہرے کو اس طرح 3 مرتبہ دھونا ہے، اپنے ہاتھوں میں اس طرح پانی لے کر اپنے چہرے کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا ہے۔ پورا چہرہ جو حد بتائی گئی ہے، پورے چہرے کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جب ہم نے پورے چہرے کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیا، پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی تر کرنا ہے۔ داڑھی رکھی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ ایسی سنت ہے جو اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو عطا کی تھی، اور سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے داڑھی کو رکھا تھا، اور صحابہ نے بھی داڑھی کو رکھا تھا۔ یہ مسلمان کی ایک نشانی ہے، اور یہودیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے چہروں پہ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے چہرے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنانا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہم نے اپنی داڑھی کو دھونا کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی داڑھی کو بھی دھونا ہے، اور داڑھی کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ہم نے اپنے ہاتھ میں، اپنے چلو میں پانی کو لینا ہے، اپنے چلو کے اندر پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈال کر اس طرح ہم نے داڑھی کے ساتھ اس طرح اس کو تر کرنا، اچھی طرح داڑھی کو تر کرنا ہے۔ جب داڑھی اچھی طرح تر ہو جائے گی، داڑھی دھل جائے گی، اس کی جڑ تک پانی پہنچ جائے گا، تو پھر ہم نے اپنی داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے۔ اور داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھو ایسے انگلیاں جو ہے نا، ان انگلیوں کو ایسے باہر کی طرف سے، خلال کا مطلب ہوتا ہے اپنی داڑھی کے اندر جو پانی ہے نا، اس پانی کو ختم کرنا، تاکہ ہم نماز پڑھے مسجد میں قطرے اس پانی کے نہ گرے، اپنے چہرے، اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر قطرے نہ گرے۔ تو اگر ہم اس طرح اپنی داڑھی کا خلال کریں گے، آگے سے سینے کی طرف کریں گے، تو پھر کیا پانی جب اس طرح کریں گے تو وہ اپنے کپڑوں پہ گرے گا، تو وضو کا پانی جو ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ تو داڑھی کا جب ہم نے خلال کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اندر کی طرف سے ایسے آگے ہاتھ رکھنا ہے، اور اندر کی طرف سے اپنی انگلیوں کو داڑھی میں ڈال کر اس طرح ہم نے خلال کرنا ہے۔ اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد جب ہم نے چہرے کو بھی دھو لیا، اپنی داڑھی کو تر کر دیا، پھر اس کے بعد داڑھی کا خلال کر لیا، پھر اب ہم نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔
हमने अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। जब हमने अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है तो उसका तरीका कार ये है, पहले दाएं हाथ को, पहले क्या, दाएं बाजू को, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। और यहाँ से हमने इसको शुरू करना है, ये यहाँ तक धोना है। हमने कहाँ तक धोना है इसको? यहाँ तक। ये कोहनी है, ये क्या है? ये कोहनी है। इधर तक नहीं धोना, बल्कि ये कोहनी से ऊपर तक, ताकि सारी मुकम्मल की मुकम्मल कोहनी जो है ये इसके अंदर अच्छी तरह धुल जाए। पहले हमने अपने दाएं हाथ को कोहनी समेत धोना है। इसको अच्छी तरह 3 मरतबा धो लेंगे ना, फिर अच्छी तरह धुल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने अपने दूसरे हाथ को भी कोहनी समेत धोना है। हसन, आप खड़े होके बताओ दोनों हाथों को कैसे धोना है। जल्दी खड़े हो जाए, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी। अपने बाजू ऊपर करो ना, जो कमीज पहनी हुई है इसके बाजू ऊपर करो, अच्छी तरह दिखाओ हमें। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, बोलते जाए, शाबाश, जल्दी करें। अच्छी तरह इसको धो लेना है ना। पहले दायां बाजू धोना है, फिर हाँ जी, तो धो के दिखाओ कैसे, कहां तक धोना है। ये कौन सा बाजू आप पकड़ा हुआ है आपने? हाँ जी, करके दिखाए ना कैसे, कहां से, पीछे से पानी आगे से लेके जाना है या आगे से पीछे लेके जाना है? हाथ से पीछे की तरफ, कोने की तरफ पानी लेकर जाना है। ऐसे हमने हाथ आगे की तरफ, इधर से पानी आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इस तरह अपने दोनों हाथों को हमने कहां तक धोना है? दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। ये क्या था, दोनों हाथों को हमने क्या करना है, वुजू के अंदर कोहनियों समेत धोना है। बैठ जाए नीचे आप। अब मेरी तरफ तमाम तवज्जो करें। जब हमने अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लिया और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पूरे सर का मसा करना है। सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। सर के चौथे हिस्से का मसा करना क्या है? सुन्नत है। सर के चौथे हिस्से का मसा करना फर्ज है। पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। अब पूरे सर का मसा करना कैसे, हमने पूरे सर का मसा करना है? पूरे सर का मसा हमने इस तरह करना है कि जब हमने अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लिया, फिर उसके बाद पहले हमने अपने दोनों हाथों को तर करना है। इस तरह जब हमने अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह तर कर लिया और फिर उसके बाद इस तरह हमने ये अंगूठा और जो शहादत वाली उंगली है ना, ये दोनों को जुदा कर लें। ये दोनों को जुदा कर लें। ये 3 उंगलियां इस तरह साथ मिला लें। अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह 3 उंगलियों को साथ मिला लें। और ये हमने इस तरह दोनों हाथों की उंगलियों को हमने इस तरह साथ मिलाना है। क्या करना है? इस तरह हमने दोनों हाथों की उंगलियों को हमने इस तरह क्या करना है? भाई ये उंगली को नहीं मिलाना, ऐसे मिलाना है। अभी इस तरह करो सब बच्चे हाथ, इस तरह करो सब बच्चे हाथ, ऐसे हाथ ऊपर करके रखो। ये किस तरह तूने बनाया भाई, उंगलियों को साथ मिलाओ, इस तरह करो ना, इस तरह करो। इस तरह नहीं करना, इस तरह हाथ सीधा रखो। इस तरह हाथों को साथ मिलाकर फिर उसके बाद हमने करना क्या है, इस तरह हमने हाथों को साथ मिलाना है। दुआ नहीं मांगनी। आपको समझ नहीं आ रही क्या समझा रहा हूं मैं आपको? इस तरह करो, हाथों को उंगलियों को इस तरह साथ मिलाओ। इसका तरीका ठीक करवा भाई हसनैन, इसका तरीका ठीक करवा। खड़े हो जाओ, खड़े होके ना इसका तरीका ठीक करवाओ। आगे आ जाना, आगे आ जा, शाबाश। इसके बाद चल के आप इसका तरीका ठीक करवाओ। इसके हाथ पकड़ के सही करवाओ। चलो ठीक है। इस तरह अब उंगली ये खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने भाई ने आपको बताया इसी तरह करना है। उंगलियों को बैठ जाए नीचे। उंगलियों को इस तरह हमने क्या करना है? साथ मिलाना है। उंगलियों को इस तरह हमने क्या करना है? साथ मिलाना है। और जब हमने अपने हाथों को तर करके उंगलियों को इस तरह साथ मिला दिया, साथ मिलाने के बाद हमने कैसे मसा करना है? ये शर्त, ये जहां से बालों की इब्तिदा होती है, ऐसे मेरी तरफ पहले देखे ना, मेरी तरफ देखे पहले, बात तो सुन ले गौर से। हाथ नीचे कर रहे हैं, अभी हाथ नीचे कर रहे सब।
इस तरह हमने अपने दोनों हाथों को तर करने के बाद उंगलियों को साथ मिलाना है। हमने पूरा हाथ तर किया था, पूरे हाथ को वुजू के अंदर, ये मसे के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका क्या है? इस्तेमाल का तरीका ये है, पहले ये 3 उंगलियां, पहले ये 3 उंगलियां और इस हाथ की भी 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियां जो है, ये इन उंगलियों को आपस में हमने इस तरह साथ मिलाना है। हाथ भी अपने नीचे रखें। पहले इन 3 उंगलियों को ऐसे बालों की इब्तिदा से, मेरी तरफ गौर से देखो, मैं किसी बच्चे को भी खड़ा करके सुन सकता हूँ, तरीका समझ सकता हूँ उसे। अब देखें, इस तरह 3 उंगलियों को इस तरह साथ मिलाना है। जब इस तरह साथ मिला लिया तो फिर उसके बाद हमने ऐसे, जहां से बाल शुरू होते हैं, पहले मेरी तरफ देख लो, फिर आप लोग करना। इस तरह हमने साथ मिलाना है और इसको ऐसे पीछे की तरफ लेते जाना है, यहाँ तक कि हाथ खींचते 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 ये गर्दन तक चले जाए। ये देखो ना, हाथ खींचते खींचते इस तरह गर्दन तक आ जाए। जब गर्दन तक हाथ आएंगे तो 3 उंगलियां हमारी जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है। हमने इस तरह 3 उंगलियों को ऐसे पीछे गर्दन तक खींच के ले जाना है। जब हम गर्दन तक खींच के ले गए, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो तली है, ये जो क्या है, तली, इसे क्या कहते हैं, तली कहते हैं कि और कुछ नाम है इसका, तली कहते हैं ना। ये जो हाथ का ये वाला हिस्सा है, अब इसको, ये जो हाथ का ये वाला, ये जहां ये वाला हिस्सा जो है ना, इस हिस्से को हमने इस तरह ये पीछे तक लेके गए, फिर इसको, इस वाले हिस्से को ऐसे आगे की तरफ लेके आना है। ये देखिए ना, ये ऐसे हम गर्दन तक लेके गए, गर्दन तक लेके गए तो फिर उसके बाद हमने इस तरह इस हिस्से को आगे तक ले जाना है। आगे तक इस तरह आगे इसको लेके आना है। इस तरह हमने इसको आगे तक लेके आना है। ये वाला जो सारा हिस्सा है ना, मसा के अंदर इस्तेमाल हो, 3 उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई, ये तली भी इस्तेमाल हो गई। फिर उसके बाद ये तो पूरे साथ का मसा हो गया। और मसे के अंदर, वुजू के अंदर एक सुन्नत, एक मुस्तहब अमल ये भी है, कानों का और गर्दन का भी मसा करना। जब हमने कानों का मसा करना है, उस वक्त हमने करना क्या है, अपनी ये जो शहादत की दोनों हाथ की उंगलियां हैं, दोनों हाथ की अंगूठे के साथ वाली जो उंगलियां हैं, इसको इस तरह कान के अंदर मारना है। इसको मारने का तरीका क्या है कि कान के अंदर जो सुराख है ना, उधर तक ले जाकर ऐसे हमने इसको, जैसे जैसे ये कान के अंदर ऊंची नीची जगह बनी होती है, इसके अंदर अच्छी तरह घुमाना है। अच्छी तरह हमने इसको क्या करना है, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह घुमाना है। फिर उसके बाद ये जो अंगूठा रह गया, इस अंगूठे को हमने कान के पीछे इस्तेमाल करना है। इस अंगूठे को हमने कान के पिछले हिस्से पे इस्तेमाल करना है। अब ये उंगलियों का पीछे वाला हिस्सा रह गया, इस उंगलियों के पीछे वाले हिस्से को हमने गर्दन पे इस्तेमाल करना है। और इस तरह गर्दन पे इस्तेमाल करना है, गले तक नहीं लेके आना। इस तरह हमने इस तरह क्या करना है, इस तरह इन उंगलियों को हमने इस तरह उंगलियों को क्या करना है, 4 की 4 उंगलियों को गर्दन पर इस्तेमाल करना है। ये मसे का सुन्नत तरीका था। अब फिर इख्तिसार के साथ समझ लें, इस तरह दोनों हाथों को तर करके इस तरह हमने बालों की जड़ से शुरू करना है, इसे गर्दन तक लेके जाना है। फिर उधर से हमने ये तलियों को आगे तक लाना है। फिर उसके बाद ये उंगली को हमने कान के अंदर अच्छी तरह मारना है, अंगूठे को हमने कान के पीछे मारना है और हाथ का पिछला हिस्सा हमने गर्दन पर अच्छी तरह मारना है। तो अब कोई बच्चा, अहमद आप खड़े होकर बताओ मसे का सुन्नत तरीका क्या है। ये जो हाथ की शहादत वाली उंगली और अंगूठे वाली उंगली को लगा रखना है, और ये 3 उंगलियां को साथ मिलाकर, हाँ जी, इस तरह ये वाला जो 3 सामने वाला हिस्सा है को सर के आगे शाबाश, वाले हिस्से से लेकर और ये गर्दन तक ले जाना है। गर्दन तक लेके जाना है। और ये जो तली है इसके साथ ये पीछे से ऐसे आगे लानी है। हाँ जी, फिर उसके बाद ये जो शहादत की जो उंगलियां हैं, इसको कान पे फेरना है और इस तरीके से, और ये पिछला जो अंगूठा है उसको कान के पीछे से साफ करना है अच्छे तरीके से, और जो पीछे गर्दन का हिस्सा उसे 4 उंगलियों से साफ करना है। उधर उंगलियों से मसा कर लेना है। और आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? अरमान नाम है। अरमान आप बताओ, शाबाश, जल्दी करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास।
3 उंगलियां इनको ये बालों की जड़नी है, इससे पीछे तक लेके जाना है, गर्दन तक लेके जाना है। गर्दन तक लेके जाना है। फिर तली है, इससे है ना ऐसे आगे लेके आना है, इधर साइड पे आगे सर के ये जो साइड वाला हिस्सा इधर था, ऐसे लेके आना। फिर ये उंगलियां नहीं है, ऐसे पूरे कान के अंदर मसा करना है। फिर ये ऐसे उठनी है, इससे ऐसे करना है। फिर ये जो 4 उंगलियां हैं इनसे पीछे मसा कर लेना है। आप बताएंगे खड़े होके? हाँ जी, खड़े होके बताएं मसा कर। टोपी बांध ले सर से। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, आप बताएं। पीछे ये आगे बालों की जड़ से लेकर गर्दन तक हाथ लेके जाना है। फिर उसके बाद फिर तली को आगे लेके आना है। तली के जरिए आगे भी तो लाना है ना। दोनों हाथों की ये जो पीछे वाले हाथों उंगलियों का हिस्सा से गर्दन पर फेरना है। ये क्या है? वुजू का सुन्नत तरीका। इसके अंदर जो मसा करना है, मसे का सुन्नत तरीका आपने अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है। मसा करने के बाद हमने अपने बाजू, अपनी आंखों की उंगलियों का खिलाफ भी करना है। हाथों की उंगलियों का खिलाफ भी करना है। खिलाफ क्या है? इस तरह अपनी उंगलियों को इस तरह खींचना है। ये देखिए ना मेरी तरफ, यानी कि उंगलियों को उंगलियों में डालें। इस तरह करें सब। उंगलियों में दाएं हाथ को इस तरह डालें, यानी कि इस तरह उंगलियों में उंगली डालकर इस तरह इसको हमने पीछे ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसे आगे की तरफ ऐसे नहीं करना, बल्कि इस तरह हाथों को इस तरह डालकर हमने क्या करना है? पीछे की तरफ खींचना है। फिर बाएं हाथ के साथ भी इस तरह हमने दूसरे हाथ को भी करना है। यानी कि इस तरह हमने क्या करना है? उंगलियों का खिलाफ करना है। कैसे करना है उंगलियों का खिलाफ? आप खड़े होकर बताएं। क्या नाम है आपका? जो सामने आके बताएं कैसे करना है इसको। दाएं हाथ से शुरू करते हैं ना, हर चीज दाएं तरफ से। वुजू में दाएं तरफ से चीज को शुरू करते हैं, यानी कि उंगलियों को उंगलियों में डालकर इस तरह ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। पहले इस तरह, फिर इस, हाँ जी, इस तरह पीछे की तरफ खींचना। ये क्या है? उंगलियों का खिलाफ करना है। ऐसे ही आप अपनी जगह में, ठीक है। ये आपने समझ लिया, खिलाफ करना। और फिर उसके बाद हमने दोनों पांव को टुकना समेत धोना है। अब कोई चीज रह गई है? वुजू का सुन्नत तरीका मुकम्मल हो रहा है ना। अब इसके बाद हमने करना क्या है? दोनों पांव को टुकनों समेत धोना है। अब दोनों पांव को टुकनों समेत धोने का तरीका क्या है? इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। इस तरह जब हमने वुजू वाली जगह पे बैठे हुए हैं तो उस वक्त हमने इस तरह दोनों पांव को टुकनों समेत धोना है। टुकनों समेत धोने का तरीका क्या होगा? इस तरह हम आगे करेंगे। ये जो गिटा है ना, जिसे हम गिटा कहते हैं, इसका नाम टुकना है। इसे क्या कहते हैं? टुकने कहते हैं। क्या कहते हैं? टुकने कहते हैं। इस तरह हमने अपने हाथ दोनों पांव को ऐसे पानी के आगे रख देना है और अच्छी तरह पहले दायां पांव धोना है। इसको अच्छी तरह हमने क्या करना है? अच्छी तरह इसके ऊपर पानी बहाकर उल्टे हाथ के साथ, फिर उसके बाद क्या करना है? हमने उल्टे हाथ के साथ अपने पांव को अच्छी तरह क्या करना है? धोना है। अच्छी तरह धोना है। ये उल्टा, दाएं हाथ के साथ नहीं करना इस तरह, बल्कि उल्टे हाथ के साथ हमने अपने पांव को अच्छी तरह धोना है। और हमने अपने टुकने से ऊपर करना है। हमने अपने पांव को टुकने तक नहीं, बल्कि यहाँ तक ऊपर तक धोना है। इस तरह ऊपर तक जब हमने एक पांव को धो लिया और फिर हमने क्या करना है? अपने पांव की उंगली का खिलाफ भी करना है ना। तो हमने कैसे करना है? ये बाएं हाथ की छोटी उंगली जो चीची है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हमने इस तरह हाथ पांव की उंगली को खोलकर, एक हाथ से हमने पांव की उंगली को खोलना है। इधर मेरी तरफ करें जरा। इस तरह हमने एक हाथ के साथ पांव की उंगली को खोलना है और इस तरह हमने पहले इस तरह, फिर ऐसे, ये इस तरह, फिर इधर से, फिर ऐसे उंगलियों को खोलते जाना है और मसा करना है। फिर उसके बाद ये दूसरे पांव को, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? दूसरे पांव को धोना है। और दूसरे पांव को भी हमने कहां तक धोना है? टुकनों समेत धोना है। हमने क्या करना है? टुकनों समेत धोना। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। अपने टुकनों समेत धोना है। जब अच्छी तरह हमने धो लिया और फिर उसके बाद हमने खिलाल करना है। हमने क्या करना है? हमने खिलाल करना है। और खिलाल कैसे करना है?
इस तरह बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं पांव का तो हमने चींटी से शुरू किया था ना, तो जब हमने बाएं पांव का खिलाफ करना है अंगूठे से शुरू करना है। कहां से करना है? इस तरह। कैसे करना है? ऐसे। ये देखो हाथ से, दाएं हाथ से उंगली को खोलना है और फिर हमने क्या करना है? फिलहाल करना है। हमने क्या करना है? इस तरह हमने फिलहाल करना है। पहले अंगूठा फिर साथ वाली उंगली को ऐसे पकड़ के सारी उंगलियों का हमने अच्छे तरीके से फिलहाल करना है। ये वुजू का सुन्नत तरीका है और आपको तकरीबन ये मुकम्मल समझ आ चुका होगा। अब इसके साथ इसको दोबारा सुन लें। सबसे पहले हमने नियत करनी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को गिट्टों समेत धोना है। फिर दाएं हाथ में हमने चुल्लू के अंदर पानी लेकर मुंह में डालकर कुली करनी है। फिर मिसवाक करनी है। मिसवाक ना हो तो दाएं हाथ की ये शहादत वाली उंगली के साथ अपने दांतों को साफ करना है। फिर हमने अपने दाएं हाथ के चुल्लू में पानी लेकर उसको नाक के करीब करके नाक में चढ़ाना है। बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपने नाक को अच्छे तरीके से हमने साफ करना है। फिर उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को साथ मिला के चुल्लू बनाकर इसके अंदर पानी लेकर अपने पूरे चेहरे को धोना है। अपने इस तरह जब हमने पूरे चेहरे को धो लिया, दाढ़ी को भी अच्छी तरह धोना है, फिर दाढ़ी का फिलहाल भी करना है। फिर उसके बाद हमने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। जब कोहनियों समेत धो लिया तो फिर उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को तर करके पूरे सर का मसा करना है, जो कि आपको तफसील से तरीका बता दिया है। फिर कानों का भी मसा करना है, गर्दन का भी मसा करना है, फिर हाथ की उंगलियों का भी खिलाल करना है। फिर उसके बाद हमने करना क्या है? दोनों पांव को टुकड़ों समेत धोना है। और ये चीज ज़हन में रखनी है, वुजू के सुन्नत तरीके में सुन्नत ये है कि जिस्म के जितने भी अज़ा होने वाले हैं, सर मसा जब करते हैं सर को धोते तो नहीं ना, वो तो पानी मस करना होता है। मसा सिर्फ एक मर्तबा करना है, 3 मर्तबा नहीं करना। मसा सिर्फ एक मर्तबा करना है। इसके अलावा जिस्म के जितने भी अज़ा हैं उन तमाम अज़ा को हमने कितनी बार धोना है? 3 बार धोना, ये सुन्नत है। और फिर उसके बाद जब हमने वुजू करना है तो दाईं तरफ से शुरू करना है। क्या करना है? किसी तरह की कोई भी बात नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद एक उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरे उज़्व को भी धो लेना, दूसरे अज़ा को धो लेना। जब वुजू हमने मुकम्मल कर लिया, फिर उसके बाद हमने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर, किसकी तरफ? ऊपर छत हो या छत ना हो, ये नहीं कि अब हमने आसमान को देखना कि बाहर गली में जाए आसमान को देखने के लिए, नहीं, बल्कि वुजू करने के बाद हमने अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाना है और उसके बाद कलमा शहादत पढ़ना है। आता है ना सबको कलमा शहादत? अशहदु, मेरे साथ पढ़े, अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह वुजू करने के बाद हमने कलमा शहादत जो दूसरा कलमा है वो पढ़ना है। हदीस मुबारक का खुलासा है कि जो बंदा इस तरह वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। ये वुजू का मुकम्मल सुन्नत तरीका था जो आपने तफसील से प्रैक्टिकल के तौर पर समाअत फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की समझ अता फरमाए और जो कुछ भी सीखा इसे दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।